غور کریں گے تو یہی 3 قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، یا مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، اور مسلمانوں کے اندر 2 قسمیں، ایک مومن دوسرا منافقین کی بھی کچھ خصلتیں ہیں اور غیر مسلم کی بھی کچھ خصلتیں ہیں، اسی طرح سے ایمان والوں کی بھی کچھ صفات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایمان والوں کی صفات بیان نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس دنیا کے اندر اکثر لوگ 50% سے زیادہ، ایٹ لیسٹ ہم اکثر کہیں گے تو اکثر دلالت کرتا ہے 50% سے زیادہ، کائنات کے اندر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ جاہل ہے، لا علم ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں لا علم؟ اگر آج کے دور میں ہم بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہماری جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، یہ ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن کیا ہمارا ان لوگوں کو تعلیم یافتہ کہنا یہ اللہ کی نظر میں تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اس بات کو سمجھنا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم صرف 1400 برس پہلے صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا اور انہیں کے زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے آخری کتاب، آخری آئین، آخری کلام اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اور ساتھ میں فرمایا، اب دیکھیے اس آخری جو سینٹنس ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اسی کے ساتھ میں دوسری آیت آتی ہے جس کا تعلق بھی اس آیت کریمہ سے، فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہلے نفی کر دی، اور عربی زبان کا اسلوب ہی یہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کلمہ طیبہ ہمارا ہے لا الہ ہے ہی نہیں، پہلے اللہ رب العالمین نے نفی کر دی، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر فرمایا الا اللہ، مگر اللہ ہے، تو پہلے نفی پھر اس بات۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں گا انا قائم، میں کھڑا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی اور کھڑا نہیں، ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں، ممکن ہے کوئی اور بھی کھڑا ہوگا، لیکن جب میں کہوں گا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے الا انا، یا ان کھڑا نہیں ہے سوائے میرے، تو اس وقت اس قسم کا سینٹنس استعمال کیا جائے کہ جب اگر ہم کہیں گے اللہ معبود، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ معبود ہے، اللہ معبود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ممکن ہے کوئی اور بھی معبود ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کہتے ہیں، مطلب ہمیں جو کلمہ سکھایا کلمہ طیبہ، جو کہ سورۃ الروم کے اندر غالباً یا سورۃ الغافر کے اندر ہے، آیت نمبر 14 ہے، مجھے آیت یاد نہیں، سورۃ کا نام جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، بے شک کہ میں ہی اللہ ہوں، اور آگے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، اللہ کے سوا معبود نہیں ہے۔ تو وہی اس لوگ یہاں پہ بھی ہیں، مجھے سمجھنے میں شاید میں اچھی طرح سے آپ کو سمجھا نہیں پایا، تو فرمایا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جانتے ہیں دنیا ہی کچھ ظاہر علوم، یعنی کہ ایک شخص ہم میں سے ایک مسلمان ہے جس نے یہ مسجد کنسٹرکٹ کی ہے، اس مسجد کی تعمیر کی ہے، تو اس کے پاس علم ہے کہ مجھے یہ ستون کس طرح سے بنانا ہے، مجھے یہ شیٹرنگ کس طرح سے بانی، اس پہ یہ عمارت کیسے کھڑی ہوگی، تو علم تو اس کے پاس ہے۔ ایک شخص دروازہ بناتا ہے، تو ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے دروازہ بنانا، تو اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس علم ہے، تو ہر کوئی اپنا اپنا علم اور اپنا اپنا ہنر رکھتا ہے، کسی کے پاس کیمسٹری کا علم ہے، کوئی بایولوجی کے بارے میں جانتا ہے، کوئی زوالوجی کے بارے میں جانتا ہے، کوئی میتھمیٹکس کے بارے میں جانتا ہے، کوئی جیوگرافی کے بارے میں جانتا ہے، تو مختلف قسم کے علوم دنیا میں ہیں اور لوگ ان علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ دنیاہی علوم جس کے پاس بھی ہیں، یہ ظاہری علوم جس کے بھی پاس بھی ہیں، اگر شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ سب کے سب جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور آگے بھی فرمایا، اس کے آگے فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، دنیا کے ظاہری علوم وہ رکھتے ہیں، کوئی مستری ہے وہ دروازہ بنانا جانتا ہے، کوئی اور کام جانتا ہے، کوئی انجینئرنگ جانتا ہے، کوئی میتھمیٹکس کے اندر جو ہے ہنر رکھتا ہے، لیکن فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں، گویا کہ ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے پاس دنیا کے علوم ہے لیکن آخرت کے علم سے اگر وہ غافل ہے تو وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر کہیں
मुसलमान की सिफत ला इल्म नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान ला इल्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मतलब कहीं जगहों पे फरमाया वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून, या फरमाया वलाकिन ला यशउरून, या फरमाया वलाकिन ला यफ्क़हून। वो लोग नहीं जानते हैं, शऊर नहीं रखते हैं। लेकिन किन लोगों के बारे में? मुसलमान का तज़किरा नहीं, बल्कि वो या तो काफिर का तज़किरा होगा या मुनाफिकीन का तज़किरा होगा। मुसलमान के बारे में कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं फरमाया कि वो जानता है। इन्हीं आयात की तफसीर में हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर एक ताबई हसन बसरी रहमहुल्लाह का एक कौल नकल किया इस आयत की तफसीर में। आप सुनिए, हसन बसरी कहते हैं रहमहुल्लाह कि फरमाते हैं वल्लाहु लबलग मिन अहदिहिम बिदुनिया अन्नहु युकल्लिबु दराहिमा अला दुफरिही। एक शख्स दुनिया के उलूम के अंदर इतना आगे निकल जाता है कि अगर आप उसके पास दिरहम लेकर जाएंगे, वो सिर्फ अपने उस नाखून से खुरच कर बता देगा ये असली है या नहीं। मैं आसान मिसाल देना चाहूंगा। सोना हमारे पास है, हम में से हर कोई नहीं पहचान सकता ये सोना असली है या नकली है, हर कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन जब आप गोल्ड से जो सुनियार है उसके पास ले जाएंगे, फौरन देखते ही वो बता देगा कितना प्योर है कितना नकली है। गोया कि उसके पास इल्म है उस बात का, और कितना माहिर है वो अपने इस इल्म के अंदर। और हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स दुनियादारी में इतना आगे चले जाता है कि वो नाखून से खुरच कर बता देगा ये सोना असली है या नकली है। लेकिन आगे का जुमला सुनिए, फरमाया वमा युहसिनु अन युसल्ली, लेकिन जानता ही नहीं कि नमाज किस तरह से अदा करना। क्या आज हमारी मेरी और आपकी यही हालत नहीं है? इन आयात की तफसीर में इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उस वक्त के यानी ताबईन में से हसन बसरी रहमहुल्लाह जो पहली सदी हिजरी के अंदर जिनका जो है पैदाइश होती है और दूसरी सदी हिजरी के अवाइल में उनकी वफात हो जाती है, उस वक्त फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया के उलूम के अंदर इस कदर आगे निकल जाते हैं लेकिन जानते ही हैं नमाज कैसे पढ़ी जाए। आज मुसलमानों अपने घरानों की तरफ नजर दौड़ाओ। कल ही 2-4 दिन पहले एक साहिब से मेरी मुलाकात हुई, बुजुर्ग जिसकी एज तकरीबन 80 साल हो, जो पिछले 50 साल से या 40 साल से 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज फजर भी नहीं छोड़ते हैं, ज़ोहर भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने कहा आप सना पढ़ के सुनाए। कहाँ में जानता है? कहाँ में जानता? मुझे सना याद ही नहीं। नमाज पढ़ के लेकिन सना याद नहीं। मुझे बताओ लोगों, कयामत का दिन होगा, आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? हमने सब कुछ सीख लिए, बड़े बड़े टफ काम भी हमने सीख लिए। ये जो हमारे सामने पीछे रेत पड़ी हुई मट्टी है, इस मट्टी को हम फेंक के असम पानी का मतलब बेल चला। मुझे बताइए ये आसान काम है? नहीं है। अल्लाह की कसम बड़ी मुश्किल से सीखना पड़ता है, वरना ये मट्टी जो है एक जगह जाती नहीं, मतलब रिंगल नहीं है गश्त सारे से, तो सीखना पड़ता है। बड़ी मेहनत के बाद फिर इंसान सीखता है तो वो टेक्निकल बन जाता है, फिर वो फेंकेगा तो मट्टी बिल्कुल एक जगह पे पड़ती है। तो काम है सीखने का, इल्म है ये काम हम सीख लेते हैं, लेकिन नमाज हम सीख नहीं पाते। तो मुझे कहना जो है वो ये है, लोगों ने आज मुसलमानों को गफलत में डाल दिया है कि आप लोग नहीं सीख सकते हैं। अल्लाह की कसम अगर आप नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं फिर भी पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं उस नमाज को पढ़ने का, कोई फायदा नहीं, मत पढ़िए। अब आप कहेंगे कि आज हमें बताया जाए कि आप नमाज मत पढ़ो। हम ये नहीं कहते नमाज मत पढ़ो, लेकिन हम कहते हैं कि पहले सीखो और फिर पढ़ो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं नहीं जानते हैं, आप नमाज जारी रखें, लेकिन सीखना भी शुरू कर लीजिए। इस ख्याल में मत रहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं फिर जैसे भी पढ़ रहा हूं वैसे चलेगा। नहीं लोगों, ये दीन है, ये सीख कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए और फौरन कहते हैं वापस जाओ, तुमने नमाज पढ़ी। 3 मरतबा जाता है, फिर कहते हैं सिखाते हैं कि इस तरह से नमाज पढ़ो। साहबी रसूल ने नमाज पढ़ी, कौन था? साहबी रसूल। और कौन कहते हैं नहीं पढ़ी तूने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट मींस कि गलत तरीके से नमाज पढ़ना इज इक्वल्स टू 0, न पढ़ने के बराबर। मैं मत कहता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी रसूल को वापस। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला यअलमून ला यफ्क़हून इस किस्म के जुमले जो है इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे हमारे सामने हमारे असातिज़ा हैं जो कि हाफिज भी हैं और दीगर सलफ़ी उलमा बैठे हुए। अल्लाह की कसम कहीं भी कुरान करीम के अंदर आपको मुसलमान के बारे में ये सिफत मिलेगी नहीं कि मुसलमान नहीं जानता है। मुसलमान नहीं जानता हो नमाज कैसे पढ़नी है, मुसलमान को इल्म नहीं हुआ अल्लाह के बारे में, मुसलमान को मारिफत न हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज के दौर के अंदर लोगों कौन सा बहाना है आपके पास कि आप पढ़ नहीं पाए, आप सीख नहीं पाए? उलमा आपके सामने मौजूद हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, काबिले मुबारक है तहसील जमीयत अहले इस्लाम सूर। यहाँ नील के अंदर कुलिया तौबा के अंदर खवातीन के लिए ज़ोहरा वीकली क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है।
कोई फीस आपसे नहीं ले रहा है। अपनी माओं को भेजो, अपनी बहनों को भेजो, वहां पे उनकी तरबियत होगी, नमाज पढ़ना सिखा दिया जाएगा, वुजू का तरीका सिखाया जाएगा, जो बुनियादी चीजें हमें जरूरी हैं। जितना हम समझते हैं कि हमारे लिए अहम है खाना खाना, उससे भी ज्यादा अहम है कि हम नमाज के बारे में हासिल करें, दीन का इल्म, बुनियादी इल्म। इमाम इब्न बाज रहिमहुल्लाह ने किताब लिखी, छोटा सा किताब था। परसों हमने तहसील जमीयत के लिए दारुल हुदा हैदराबाद से वो किताब मंगाई। वो जो किताब थी उसमें एक छोटा सा किताब था इब्न बाज रहिमहुल्लाह का, वो किताब पढ़ रहा था तहसील जमीयत में, वहाँ पे ऑफिस में मौजूद था किताब। उस किताब का नाम है मतन दुरूसिल मुहिम्मतु लिआमतिल उम्मा, यानी उम्मतिल आम। ये उस किताब का जो टाइटल है उसका मतलब ये है कि ये जो दुरूस है ये आम मुसलमानों के लिए है। मतलब कोई किताब होती है जो सिर्फ एक आलिम ही पढ़ पाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जैसे मदरसे के अंदर जो निसाब होगा वो सिलेबस है स्टूडेंट्स के लिए, जो दीनी तलबा है वही, आप लोगों के काम वो ज्यादा मुफीद नहीं है। लेकिन वो किताब है आम मुसलमानों के लिए। मैंने कहा जरा देखो कि ये आम मुसलमानों के लिए, अल्लाह की कसम जब मैं उस किताब का मुताला किया मुझे ऐसी बहुत सारी बातें मालूम हुई जो मैं जानता ही नहीं था। वो किताब कम से कम हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। उसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है, कलमा शहादत की जो है शर्तें बयान की गई, फिर रसूल अकरम का तारुफ है, फिर नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में जो बुनियादी उलूम है उसमें दिए हुए। कम से कम एक मुसलमान को इतना पता होना चाहिए। चंद आयात आपके सामने रखते हुए मुख्तसरन अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। मैंने कहा कि ये जो सिफत है ला यअलमून ला यफ़क़हून, ये सिर्फ और सिर्फ काफिरों के बारे में है या मुनाफिकीन के बारे में। अगर आपके अंदर ये सिफत पाई जाती है या हमारे अंदर, नाउज़ बिल्लाह, हमें डर होना चाहिए कि हमारे अंदर भी मुनाफिकीन की सिफत, और ये बहुत बड़ी सिफत है, बड़ी जो सिफत है ना मुनाफिकीन और कुफार की, वो यही है ला यअलमून ला यफ़क़हून। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नजम के अंदर फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना व लम युरिद इल्ला अल-हयातद दुनिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एराद कीजिए, आप इन लोगों से एराद कीजिए। किन लोगों से? अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, जो हमारे जिक्र से, दीनी इल्म से एराद करते हैं, जो इस दीन सीखने के लिए नहीं आते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वलम युरिद इल्ला अल-हयातद दुनिया, वो चाहते हैं तो दुनिया ही उलूम के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने की जो है कोशिश और सही में लगे हुए हैं। इस तरह से सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाह, जब उनसे कहा जाता है, किनकी बात हो रही है? ये कुफार की बात हो रही है, काफिरों की बात हो रही है। फरमाया जब उनसे कहा जाता है आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया। क्या किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल? ये शरीय इल्म है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया, कुरान का इल्म है, अहादीस है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुई है, चाहे वही मतलू है या वही गैर मतलू है। फरमाया वो कहते हैं कालू हस्बुना मा वजदना आबाना, हमारे लिए वही काफी है जिसमें हमने अपने बाप दादा को पाया। मेरा बाप बिजनेसमैन है, वो दुकानदारी करते हैं, मुझे क्या जरूरत है दीदी से? बस अब्बा जान के जाने के बाद मैं दुकान में बैठ जाऊंगा, मेरा काम चलेगा। ये सोच किसकी है लोगों? कुरान हकीम बयान करता है ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं हस्बुना, हमारे लिए काफी है, मा वजदना अलैहि आबाउना, जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। मेरा बाप बड़ा जमींदार था, दादा बड़ा जमींदार था, हम जमींदारी ही करेंगे, दीन सीखने की हमें जरूरत नहीं है। ये मुसलमानों की सोच है, नहीं हो सकती, ये कुफार की सोच है। इसी तरह फरमाया फलम्मा जाअतहुम सूरह गाफिर के अंदर, फलम्मा जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, जब अल्लाह के रसूल बय्यिनात लेकर, दलाइल लेकर, कुरान सुन्नत का इल्म लेकर इन लोगों के पास जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं फरीहु बिमा इंदहुम, खुश हो जाते हैं जो इनके पास। अरे दीन के इल्म की हमें क्या जरूरत है? मैं तो जियोग्राफी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो इंग्लिश ग्रामर जानता हूँ, मैथमेटिक्स जानता हूँ, मैं अपने उसको इल्म और अपने स्कूल पर इतराते हैं। और ये इतराने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। ये इतराने का लफ्ज़ ये दो माह में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे इतराने के माने में, जैसे कि कारून से कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला तफरह, अब इतराओ मत अपने उस्मान पर, तो ये अपने उस इल्म पर, अपने हुनर पर इतराना, खुश हो जाना और दीनी इल्म को पस्त पुष्ट डाल देना, ये सारी सिफात या तो कुफार की हैं या मुनाफिकीन के। जैसे सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वलाकिन ला यअलमून, किनके बारे में? मुनाफिकीन के बारे में। वलाकिन ला यशउरून, शऊर नहीं रखते, किनके बारे में? ये फरमाया मुनाफिकीन के बारे में। मुख्तसर ये है कि मुसलमान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि मुसलमान ला इल्म हो, मुसलमान को शऊर नहीं हो, या वो ये कहे कि मैं दीन जो है नहीं सीख सकता हूँ। अगर ये किसी के अंदर पाई जाती है तो ये बड़ी बड़ी सिफात है या कुफार की या मुनाफिकीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो हिफाजत फरमाए और हमें जो है वो सिफात अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो मुसलमानों की सिफात हैं, और मुनाफिकीन से मुशाबत और कुफार से मुशाबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचा ले। तो मुख्तसर ने पैगाम ये देना चाहता था कि इस वक्त जामिया हदीस मगरकोट के अंदर एक अज़ीमुश्शान इदारा
कायम किया जा रहा है। वो मरकज शेख इब्न बाज रहीमहुल्लाह के नाम से संडे क्लासेस के नाम से जो है ये इदारा चल रहा है, जहाँ पे सिर्फ हफ्ते में एक दिन आना है। वहीं पे आप दुरुस्त जो है अपनी जबान भी सीखेंगे, कुरान का इल्म भी आपको दिया जाएगा, हदीस का इल्म भी दिया जाएगा, और बुनियादी जो उलूम है वो सारे उलूम वहाँ पे सिखाए जाएंगे। मुझे बताइए, अगर आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 70 साल में अगर आप इतना भी नहीं सीख पाए कि आप सूरत फातिहा को सही तरीके से पढ़ लीजिए, आज ही बेदार हो जाना चाहिए। कल एतवार है, आप सबके सब वहाँ पे पहुंच जाने चाहिए, और जो आपके अतराफ में या कहीं भी आपके रिश्तेदार में हैं उन सब तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि कम से कम अगर हम रोजाना मदरसे में नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन जाना है 2 घंटे के लिए, वहाँ पे ये बुनियादी सारी जरूरियात आपकी पूरी हो जाएंगी, जो कि दिन में 3 मरतबा खाना खाने से भी ज्यादा अहम है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस लेना हमारे लिए जितना अहम है, इससे भी ज्यादा अहम है कि हम दीनी इन जो है मराकिज़ के अंदर जाकर बुनियादी इल्म हासिल कर ले, ताकि हमारा इत्लाक जो है कुफार और मुनाफिकीन पर नहीं हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए और